हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माई एसक्यूएल का जॉइंट टॉपिक। ये टॉपिक आप 10 मिनट्स में ही इस वीडियो से समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेरी जो आपसे बोर्ड में पूछी जाती है उसके आंसर आप मिनटों में ही निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट, माई एसक्यूएल में जो ज्वाइंस होते हैं वो क्या है? व्हाट इज एसक्यूएल ज्वाइन? तो ज्वाइन क्या है? ज्वाइन इज अ क्लॉज which combine rows from two or more tables. कि if you want to extract the records from two or more table, then you have to use the join concept. Okay, so it is used to combine rows from two or more table and based on the related column between them. So students, what do you mean by related column? Related column means there is one column, common column between them. Through this column you will specify the join condition. Okay, so in join condition, first of all, remember one thing, कि if you want to make the relationship between the tables, then you have to remember 3 points. First point, कि both the table present in a same database. Second, there should be one common field between them. And third point is that कि आपका जो कॉमन फील्ड है उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए. ओके, सो व्हेन यू राइट द जॉइन क्वेरी, whatever the records you will find from the query, it will store temporary in a table. Okay, so let's we see one example. Let's we take selection from two tables. There are order table and customer table. Two tables we will take, and in order table 3 fields and in customer table 4 fields, and we take 3 records in each table. Okay, in both the table customer ID is the common field between them. Okay, so it means कि you can specify the join condition through this common field. Right, so in order table order id is the primary key, in customer table customer id is the primary key. So in customer id in order table work as a foreign key. Okay, so customer id column in both the table is the common field, or we can say related field. Okay, so let's we learn ki how many types of join. So student, there are 3 types of join, which are: first is the Cartesian product, or the other name of Cartesian product is cross join or unrestricted join. Second type of join is equi-join, and third is natural join. Okay, so in class 12th in IP or CS there are 3 types of join: Cartesian product, equi-join and natural join. चलिए अब हम एक एक ज्वाइन के बारे में विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जिससे आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी. स्टार्ट the Cartesian product. So students, Cartesian product returns a record which is the number of rows in the first table multiplied by the number of rows in the second table. Remember one thing, without the join condition. Without the join condition means there is no where clause. No wheres is present in the query. So whatever the possible outcomes, whatever the possible combination will make in the query, that is the result of the Cartesian product, or in other words we can say it is also called cross join or unrestricted join. Through this example we will understand this thing. For example, select star from order comma customer. So when you write this query, means in order table 3 records, in customer table 3 records, means the cardinality of both the table is 3 3. But when you write this query, so cardinality becomes 9, means 3 by 3. So first record of the order table will make all the combinations with the customer table. Whatever the records are available in the customer table, it will make the combination with these records. Okay, in the same way, second record when you take from the order table, again it will make all the possible combinations of the customer table records, and so on. So
all the possible combinations which are available in order and customer table means first record जो है वो आपका सारे possible combinations बनाएगा जो आपके customer table में थे। तो जो resultant हुआ उसमें क्या हुआ, आपके 9 records available हो गए। ओके और जो आपकी डिग्री हुई, डिग्री क्या हुई, दोनों टेबल की डिग्री का सम। तो ऑर्डर टेबल की डिग्री 3 थी, कस्टमर टेबल की 4 थी, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 डिग्री हो गई। और कार्डिनलिटी क्या हो गई, कार्डिनलिटी आपकी हो गई 9। ठीक है, अब अगर आपको कार्डिनलिटी और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल रही हूं, वहां से आप समझ सकते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ MySQL। ओके, लेट्स वी स्टार्ट इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है, इक्वी ज्वाइन एक एसक्यूएल ज्वाइन ही है और इसमें हम जो कंपैरिजन ऑपरेटर लेते हैं कंडीशन चेकिंग के लिए वो क्या लेते हैं, वो इक्वल टू साइन लेते हैं। एंड थ्रू टू वेज, टू मेथड्स वी कैन यूज फॉर राइट द इक्वी ज्वाइन। ओके, तो लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर कॉमा कस्टमर वेयर order डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये चीज ध्यान देनी है आपने कि आपने क्या कहा, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल फील्ड्स, किसकी, ऑर्डर टेबल की भी और कस्टमर टेबल की भी। ठीक है, सारी फील्ड्स आ गई। और यहां पर आपने कंडीशन क्या मेंशन करी, कंडीशन आपने कहा ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। मींस कि आपका जो ऑर्डर टेबल है उसमें भी फील्ड का नाम कस्टमर आईडी है और कस्टमर टेबल में भी कस्टमर आईडी है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ज्वाइन कंडीशन देनी होती है तो दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। अब क्योंकि कॉमन फील्ड का नाम सेम ही है दोनों टेबल में, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर क्वालिफाइड नेम देंगे। और जो क्वालिफाइड नेम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टेबल का नाम, देन डॉट एंड देन फील्ड का नाम। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड नेम ऑफ द फील्ड्स। तो आपने यहां पर दोनों टेबल में क्वालिफाइड नेम दिया है कि ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी। अगर आप स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नेम यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये आपको एरर दे देगा। एरर क्या देगा, एम्बिग्यूटी एरर देगा। क्यों, क्योंकि दोनों टेबल में जो फील्ड का नाम है वो सेम है। तो किस टेबल की फील्ड को वो बता रहा है, तो वी कांट राइट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर कॉमा कस्टमर वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, राइट। And through second method we will use the which keyword, join keyword we can use. How, कि we may also perform equi join by using join keyword. अब join keyword हम कैसे यूज करेंगे, तो join keyword जो यूज होगा उसमें जो हम आपकी कंडीशन मेंशन करेंगे वो ऑन कीवर्ड से मेंशन की जाएगी। तो आप देखिए यहां पर कि मैंने क्या क्वेरी लिखी है, मैंने क्वेरी लिखी यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ज्वाइन कीवर्ड आया, देन मैंने दूसरी टेबल का नाम मेंशन किया कस्टमर, एंड उसके बाद मैंने मेंशन किया ऑन कीवर्ड। ऑन कीवर्ड देने के बाद देन वी विल राइट द कंडीशन, और कंडीशन वही सेम जैसे अभी हमने ऊपर वाली क्वेरी में डिस्कस करी थी कि ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी शुड बी इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। सो इन इक्वी ज्वाइन we compare for equality only and only equal sign operator is used in this join. No any other relational operator like less than, greater than we can't use in equi join. We will only use equi matlab equal to, it means only equal sign we will use. Okay, next you can see the output कि आपने जब वो query लिखी select star from order comma customer where order dot customer ID is equals to customer dot customer ID, so only one record it will extract. Why? Because only in this record customer ID are equal and rest of the records customer IDs are not equal, that's why it will give only one single record. Okay, so this is the output of. After the output of equi join we will move to the natural join. So natural join क्या होता है, natural join is nothing, it is equi join, but one condition is there कि natural join is equals to equi join minus one redundant column.
अब वन रिडंडेंट कॉलम क्या है, आपने देखा प्रीवियस में कि आपने इस आउटपुट में देखा कि जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर आईडी आपका क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिडंडेंट कॉलम को, जो डुप्लीकेट कॉलम है, उस डुप्लीकेट कॉलम को एक को हटा दूं तो जो रिजल्ट मेरे को मिलेगा वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा किसका, नेचुरल ज्वाइन का। तो देखिए आप, नेचुरल ज्वाइन में मैंने आपको क्या बताया है, इक्वी ज्वाइन माइनस वन रिडंडेंट कॉलम। तो इट इज अ टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन, बट कॉलम विद द सेम नेम ऑफ एसोसिएटेड टेबल विल अपीयर ओनली वंस। Okay, so how we will write the query? In this we will write select star from order, then natural join keyword we will write, and then customer. This is the one way to write the natural join query. Okay, and in next method we will tell you the second way कि second way में आप कैसे लिखेंगे। second method क्या होगा इसका, select order dot star means you will take all the fields of the order table, comma customer name, contact name, country, from, order, comma customer, where order dot customer id is equals to customer dot customer id। स्टूडेंट्स ये जो थोड़ा सा मेथड है ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और जो आपने प्रीवियस वाला मेथड देखा, प्रीवियस मेथड में आपने केवल नेचुरल ज्वाइन लिखा और उससे क्या हुआ, उससे आपका जो रिडंडेंट कॉलम था वो हट गया। सेकंड वे क्या होता है, सेकंड वे ये होता है कि आपने एक टेबल की तो ऑल फील्ड्स ले ली, इट मींस कि ऑर्डर डॉट स्टार मींस ऑल फील्ड्स ऑफ द ऑर्डर टेबल, और जो कस्टमर टेबल था कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी को स्किप कर दिया, बाकी की 3 फील्ड के नाम आपने मेंशन कर दिए यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद आपने वही टेबल के नाम बता दिए फ्रॉम के बाद कि फ्रॉम ऑर्डर कॉमा कस्टमर, वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो इस क्वेरी से भी जो रिजल्ट मिलेगा वही सेम रिजल्ट ही मिलेगा जो हमने अभी प्रीवियस क्वेरी आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने लिखा था सेलेक्ट ऑर्डर नेचुरल ज्वाइन कस्टमर। तो आपका रिजल्ट ये आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपका जो आ रहा है इसमें कस्टमर आईडी केवल एक ही बार आ रहा है। तो ये होता तो इक्वी ज्वाइन ही है, बट इसमें ये आपका क्या रहता है कि जो वन कॉमन फील्ड होती है वो माइनस हो जाती है, और जो कॉमन फील्ड है वो केवल एक ही बार आपको विजिबल होती है स्क्रीन पर, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please like and share and subscribe to see these type of videos in my channel. Thank you very much.